बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि एप्लेट का अपना एक लाइफ साइकिल है, अपना एग्जीक्यूशन का के स्टेप्स हैं। तो वो हर एप्लेट जो है उस लाइफ साइकिल या उन स्टेप्स से गुजरता है। तो एप्लेट के लाइफ साइकिल में 5 हमारे पास स्टेजेस हैं और हर स्टेज में एक मेथड इन्वॉल्व है। The first stage is initialization, and then we have starting, stopping, destroying, and painting. These are the 5 stages, but the order of their execution is different. Initialization के लिए जो method है that is named as init. Init is the method for initialization. And for starting we have start method. For stopping we have stop method. For destroying the applet we have destroy method. And for painting we have paint method. So what is the order of these methods? या ये stages applets के life में कब आती हैं? So whenever we begin executing the applet, first of all initialization is done. Init is performed first, and then the start, and then paint is called. Init, start, and paint, and then when we want to close the applet, so first stop method is called, and then the destroy method is called. So the order of execution of these methods is like this one: init, start, and paint, and then in the last stop and destroy. So ये 3 methods जो हैं इस तरतीब से कॉल होते हैं: init, start, and paint. When an applet begins, the AWT calls the following methods in this sequence. AWT इन methods को इसी sequence में, इसी order में execute करता है. init पहले, फिर start, फिर paint, और उसके बाद जब भी हम applet को terminate करते हैं तो terminate में ये जो है 2 methods इस sequence में कॉल होते हैं, पहले stop और फिर destroy. init method किस लिए यूज होता है तो इसके बारे में इस स्लाइड को जरा पढ़ लें. The init method is the first method to be called. एप्लेट के लाइफ साइकिल में init method ये पहला मेथड है जो एग्जीक्यूट होता है. This is where we should initialize variables. This method is called only once during the runtime of applet. ठीक है, ये एक ही दफ़ा एप्लेट के लाइफ में ये मेथड जो है एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, और ये वो जगह है जहाँ पर हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं. दूसरा मेथड स्टार्ट मेथड है. स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर इनिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू रीस्टार्ट एन एप्लेट आफ्टर इट हैज़ बीन स्टॉप्ड. कभी कभार हम एप्लेट को स्टॉप कर लेते हैं. ठीक है, यानी एप्लेट चूंकि एप्लेट आर इंटेंडेड टू बी इंक्लूडेड within a web page. So whenever we have opened or we open a web page containing an applet, and after some time we leave the page, so the applet or in other words we minimize the page. So in that case the applet stop its working, or the stop method is called. Whenever we maximize the page again, so the applet start running. So जब हमने पेज को मिनिमाइज किया तो स्टॉप मेथड कॉल हो गया. जब हमने मैक्सिमाइज किया तो स्टार्ट मेथड दोबारा कॉल हो गया. ठीक है, तो स्टार्ट मेथड इनिट के बाद कॉल होता है, या जब भी हम एप्लेट को जो है यानी पेज को ओपन करते हैं तो ये स्टार्ट मेथड फिर से कॉल हो जाता है. Whereas init is called once, the first time an applet is loaded. Start is called each time an applet's HTML document is displayed on screen. जब भी वेब पेज जिसमें एप्लेट मौजूद हो जब स्क्रीन पर जो है यानी वो आएगा तो स्टार्ट मेथड जो है वो कॉल होगा. सो इफ अ यूजर लीव्स अ वेब पेज एंड कम्स बैक, the applet resumes execution at start. applet ने अपनी एग्जीक्यूशन इन 5 मेथड्स में कहाँ से शुरू करनी है? स्टार्ट मेथड से शुरू करनी है. ठीक है,
पेंट मेथड कब कॉल होगा? द पेंट मेथड इज कॉल्ड ईच टाइम when applet's output must be redrawn. For example, the window in which the applet is running may be overwritten by another window and then uncovered. ठीक है, यानी ये फॉर एग्जांपल ये एक वेब पेज मैंने ओपन किया हुआ है जो करंटली मेरे पास जो है पावर पॉइंट ओपन है. सो एज्यूम प्रिटेंड दिस इज अ वेब पेज and for example if I open like this document, so this is covered, the first one is covered by the second one. ठीक है, so और जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज किया, मैंने ओपन किया फिर मिनिमाइज किया, तो अभी जो एप्लेट में जो कुछ है अगर वो दोबारा जो है स्क्रीन पे आना चाहिए तो पेंट मेथड फिर से जो है यानी जो पिक्चर ये जो टेक्स्ट जो एप्लेट में ड्रॉ करने के लिए है जी डॉट ड्रॉ के थ्रू हमने लिखा हुआ है कि इसको स्क्रीन पर ड्रॉ कर दें पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पोजीशन पे, तो उसके लिए जो है पेंट मेथड फिर से कॉल होगा. यानी जब भी हम किसी विंडो जिसमें एप्लेट मौजूद है उसको कवर करेंगे और फिर अनकवर करेंगे तो पेंट जो है वो फिर से कॉल होगा उसको ड्रॉ करने के लिए. और द एप्लेट विंडो में बी मिनिमाइज्ड एंड देन रिस्टोर्ड. तो जब मिनिमाइज कर लें और फिर रिस्टोर कर लें तो फिर स्टार्ट कॉल होगा और फिर पेंट कॉल होगा. तो हर दफ़ा स्टार्ट के बाद जो है पेंट कॉल होगा. पेंट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हेन द एप्लेट बिगिंस एग्जीक्यूशन. ठीक है, इनिट स्टार्ट और पेंट ये भी एक सीक्वेंस है, या आप जो है ये स्टॉप कर लें और स्टॉप के बाद फिर स्टार्ट और फिर पेंट, तो ये भी एक सीक्वेंस है. Whatever the cause, whenever the applet must redraw its output, paint is called. ठीक है, अगर कोई भी वजह हो सकती है, आपके पास जो है एप्लेट शुरू से जो है यानी वो एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट किया, तो आप जो है यानी पेंट मेथड ये कॉल होगा स्टार्ट इनिट स्टार्ट और पेंट. और अगर दूसरी सूरत में अगर आपने जो है यानी एप्लेट रन हो रहा है उसको आपने मिनिमाइज किया वो स्टॉप हो गया, फिर दोबारा जो है आपने मैक्सिमाइज किया तो वो स्टार्ट से जो है एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा, फिर जो है पेंट पे जाएगा और ये एप्लेट का जो कंटेंट है वो ड्रॉ हो जाएगा ऑन द स्क्रीन. Stop method. The stop method is called when a web browser leaves the HTML document containing the applet. For example, when it goes to another web page. When, when stop is called, the applet is probably running. You should use stop to suspend threads that don't need to run when the applet is not visible. You can restart them when start is called if the user returns to the web page. ठीक है, वही बात आ गई. अगर मिसाल के तौर पे जिस वेब पेज को हम रन जिसमें एप्लेट है अगर उसको हम रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको मिनिमाइज कर लिया या उसको वेब पेज को हमने छोड़ दिया किसी वजह से, फॉरवर्ड हो गए, नेक्स्ट उस में कोई लिंक था और उस लिंक पर क्लिक करके हाइपर लिंक पर क्लिक करके हम किसी और पेज पर चले गए, तो जिस पेज पर पर्टिकुलर पेज में एप्लेट था तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, और वो रिज्यूम कैसे होगी? जब हम उस वेब पेज पर दोबारा आ जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा और फिर पेंट. Destroy method. The destroy method is called when the environment determines that your applet needs to be removed completely from memory. At this point, we should free up any resources the applet may be using. The stop method is always called before destroy. ठीक है, यानी जिस वेब पेज में एप्लेट मौजूद है अगर उसी वेब पेज को आपने क्लोज कर लिया, ठीक है, वेब ब्राउज़र को ही आपने क्लोज कर लिया, ठीक है, तो जब आप वेब ब्राउज़र को क्लोज करेंगे तो एप्लेट जो है इट शुड नॉट बी इन मेमोरी, सो इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी. सो डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड एट दैट टाइम. ठीक है, और डिस्ट्रॉय से हमेशा पहले जो है स्टॉप मेथड कॉल होगा और फिर डिस्ट्रॉय कॉल होगा. ठीक है, तो ये एप्लेट का स्केलेटन है कि एप्लेट का लाइफ साइकिल क्या है. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने बना के दिखाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले पब्लिक
void init, ये मेथड कॉल होगा, बॉडी कुछ नहीं लिखा। फिर पब्लिक void start, ये मेथड कॉल होगा। void का स्पेलिंग VOID। फिर इसके बाद पेंट मेथड में जो कुछ लिखा है इसको मैं चले रहने देते हैं। और इसके बाद पब्लिक void stop, और इसके बाद जो है पब्लिक void और फिर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, इस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि पहले कौन सा मेथड कॉल होगा। देखिए अगर मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर एप्लेट बन गया और उसमें क्लास नॉट फाउंड, एप्लेट फर्स्ट। applet first class। इसको फर्स्ट एप्लेट और इसमें एप्लेट फर्स्ट में जो कुछ हमने लिखा उसकी बॉडी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसमें हो सकता है कि क्लासेस के नाम वगैरह कोई मसला आया वो, तो लेट्स ट्राई आउट दिस वन। ठीक है, सेव और रन करते हैं। यस, देयर इज नो एरर, अ सिंपल एप्लेट, वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। लेकिन किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होते हैं, दिस इज दी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो मेरे पास जो है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर मैं जे ऑप्शन पेन डॉट टू मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्गुमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपल सा जो है नल और दिस इज इनिशियलाइजेशन एक मैसेज दे देता हूँ, दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और जब मैं अगर इसको रन कर दूं तो पहले लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे ही एप्लेट ओपन हो गया, देखिए यहाँ पर पेंट मेथड अभी कॉल नहीं हुआ, कुछ ड्रॉ नहीं किया। इसने पहले इनिट जो है यानी इनिट मेथड को कॉल किया, जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन, ये डायलॉग बॉक्स जो है वो हमने डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद स्टार्ट कॉल होगा और उसके बाद पेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कॉल हो गया और पेंट फिर कॉल हो गया। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी कि ये ऑटोमेटिकली जो है ये लाइफ साइकिल की, इस लाइफ साइकिल की एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, और यही चीज़ जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स जो है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और स्टार्ट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज दी स्टार्ट मेथड। इसको रन किया। ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, ओके किया, अब स्टार्ट मेथड में आ गए। ठीक है, अभी तक जो है पेंट ने कुछ ड्रॉ नहीं किया। स्टार्ट के बाद जो है ये पेंट काम करेगा और ये अपना टेक्स्ट ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, और अब देखें मैं यहाँ पर जो है यानी अच्छा यहाँ पर एक दूसरी बात हमने कहा कि जब भी हम जो है यानी जिस जिस एप्लेट को अगर इसको हमने मिनिमाइज की, ये तो पेंट तो हो गया, इसको मैंने मिनिमाइज किया। ठीक है, और दोबारा इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ तो पहले स्टार्ट कॉल होगा, देखिए स्टार्ट कॉल हो गया। ठीक है, फिर पेंट कॉल हो गया। देखिए ये मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो
कहाँ से एप्लेट अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा? स्टार्ट मेथड से। लेकिन स्टार्ट मेथड कॉल हो गया, ठीक है। पेंट अभी कॉल नहीं हुआ, इसके बाद जो है जो कुछ एप्लेट में है वो उसको ड्रॉ करने के लिए पेंट को कॉल करेगा, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद दी स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। स्टॉप मेथड जो है जब भी हम मिनिमाइज करेंगे तो स्टॉप कॉल होगा, ठीक है। तो इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको अभी समझ आ रही होगी एप्लेट के लाइफ साइकिल की कि ये कैसे काम करता है। दिस इज दी स्टॉप मेथड। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय मेथड। जब भी एप्लेट डिस्ट्रॉय करेगा तो ये मेथड कॉल होगा। इसकी एग्जीक्यूशन में कहूँ तो यहाँ पे देखें इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद स्टार्ट और पेंट। जब मैं इसको जो है मिनिमाइज करता हूँ तो मिनिमाइज होते वक्त ये स्टॉप को कॉल करेगा। देखिए मिनिमाइज किया तो इसने एप्लेट की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया, स्टॉप कर लिया। अब इसको दोबारा मैं जो है यानी मैक्सिमाइज करता हूँ तो स्टार्ट करेगा फिर पेंट करेगा, ठीक है। अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ तो पहले स्टॉप कॉल होगा और इसके बाद डिस्ट्रॉय कॉल होगा और इसके जो है मेमोरी से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर एप्लेट का लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसी को आप इस तरह एग्जीक्यूट कर लें। देखें बुक्स में, देखिए डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लेट आप ट्राई कर लें। आई होप कि आपको एप्लेट की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।